أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا علی حسن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے ہر سبق کو آپ اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ میری سپورٹ کر رہے ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے گھروں میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، خوش رکھے، ان کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں میری ویڈیو کو۔ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ثواب کی نیت سے ان تک میری ویڈیو شیئر کریں۔ آج ہم پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 پڑھیں گے۔ پہلے میں اس آیت کی قرات کروں گی، پھر میں آپ کو تجوید کے ساتھ اس آیت کے قواعد سمجھاؤں گی۔ چلیں تعوذ اور تسمیہ کی تلاوت کے ساتھ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ چلیں اب میں آپ کو اس آیت کے قواعد سمجھاتی ہوں۔ واو کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑیں گے، حمزہ کے نیچے زیر، حمزہ کو ہم زال ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور زال کو ہم نرمی سے ادا کریں گے۔ زال کے اوپر جزم ہے، جزم کا کام ہے ملانا۔ جزم والا حرف ہمیشہ ایک بار ادا کیا جاتا ہے اور اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ادا کیا جاتا ہے۔ وا حمزہ کو زال کے ساتھ ملائیں گے، عید وا عید اور بغیر کھینچے پڑیں گے۔ یہ جو قاف ہے اس کے اوپر دو نقطے ہیں، یہ قاف موٹا قاف ہے، حروف مستعلیٰ میں سے ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ آگے الف خالی سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے، یہ الف مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ قا لام کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، لا قالا۔ را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، را بھی حروف مستعلیٰ میں سے ہے تو را کو ہم با کے ساتھ ملائیں گے، با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف دو بار ادا کیا جاتا ہے، ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ادا کیا جاتا ہے اور ایک بار اپنی حرکت کے مطابق ادا کیا جاتا ہے، سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ را کو با کے ساتھ ملائیں گے، را با پیش رب، اب یہ پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر ہم نے پڑھا با پیش بو، اب اس کی حرکت کے مطابق اس کو ہم نے ادا کیا، ربو اور بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف کے اوپر زبر، یہ باریک کاف ہے، اس کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے، کاف کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، ربو کا۔ لام کے نیچے زیر، لام کو ہم اگلے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام لام زیر لیل۔ میم کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، ما۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اوپر بڑی مد ہے، مد متصل واجب۔ کلمہ ایک ہے، اسی کلمے میں اصلی حمزہ آ رہا ہے تو حمزہ کے نیچے زیر، اس کو ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے، مد متصل واجب کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ کاف کے اوپر زبر، اس کاف کو ہم باریک پڑھیں گے، کاف کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، تا کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے، لل ما لائی کا تی۔ حمزہ کے نیچے زیر، حمزہ کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کے اوپر تشدید ہے،
नून हरुफ यार मलून में से मुशद्दिद आ रहा है, तो यहाँ हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। इन नून को हम याए साकिन के साथ मिलाएंगे, ये याए मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। यहाँ हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे और बिना खींचे पढ़ेंगे। इन्नी, जीम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली से पहले जीम के ऊपर ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, आइन के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। री, लाम के ऊपर तनवीन है, दो पेश हैं, आगे 15 हरूफ इख्फा में से फ़ा आ रहा है, तो यहाँ हम इख्फा करेंगे। यहाँ बारीक इख्फा होगा, नून साकिन या तनवीन का जो इख्फा होता है ना, वो इख्फा हकीकी होता है, तो यहाँ इख्फा हकीकी हो रहा है। फ़ा बारीक हरफ है, तो यहाँ हम इख्फा भी बारीक करेंगे। अगर हरूफ इख्फा के 15 वर्ड में से मोटा वर्ड होता तो इख्फा भी हम मोटा करते, अब बारीक वर्ड है तो यहाँ हम इख्फा भी बारीक करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लूं, फ़ा के नीचे ज़ेर, आगे या के ऊपर कोई अराब नहीं है और हमज़ातुल वसल मिलाने की सूरत में ख़त्म हो जाता है, हज़फ हो जाता है। फ़ा को हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। जाइलुन फिल, हमज़ा को हम रा के साथ मिलाएंगे, रा भी हरूफ मुस्ताइला में से है तो रा को भी हम पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। गाद भी हरूफ मुस्ताइला में से है तो गाद को भी हम मोटा पढ़ेंगे। ख़ा की आवाज़ जो होती है वो खुरदरी होती है, ख़ा भी हरूफ मुस्ताइला में से है तो इन तीनों को हम मोटा अदा करेंगे, इन तीनों को हम मोटा पढ़ेंगे। हमज़ा को रा के साथ मिलाएंगे, हमज़ा रा ज़बर और बगैर खींचे पढ़ेंगे, गाद के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। गी, फिल और ख़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ख़ा, लाम के नीचे ज़ेर, आगे याए साकिन के साथ हम लाम को मिलाएंगे, ये याए मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। ली, लाम या ज़ेर ली, फ़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। फ़ा, ता के ऊपर दो ज़बर हैं, तनवीन है, आगे त्वा वक्फ़े मुतलक की अलामत है। वक़्फ़ की सूरत में ता की दो ज़बर भी ख़त्म हो जाएंगी और ये दो नुक्ते भी ख़त्म हो जाएंगे, दो डॉट भी ख़त्म हो जाएंगे, और ये गोल ता है तो वक़्फ़ की सूरत में ये गोल ता हा में बदल जाएगा। यहाँ हम हा की आवाज़ निकालेंगे, ता की आवाज़ नहीं निकालेंगे। कैसे पढ़ेंगे? खलीफ़ा, बाज़ लोग पढ़ते हैं खलीफ़त, यानी कि ता की आवाज़ हमने बिल्कुल नहीं निकालनी, हमने हा की आवाज़ निकालनी है, ये हरकत ख़त्म हो जाएंगी वक़्फ़ की सूरत में। खलीफ़ा, क़ाफ़ के ऊपर ज़बर, काफ़ को हम मोटा पढ़ेंगे, क़ाफ़ हरूफ मुस्ताइला में से है, आगे अलिफ खाली से पहले क़ाफ़ के ऊपर ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। क़ा, लाम के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, वाव साकिन के ऊपर छोटी मद आ रही है, मद्दे मुनफसिल जायज़, इसको हम 2.5 से 3 अलिफ की मिकदार तक खींच कर अदा कर सकते हैं और हमज़ातुल वसल जो है ये ख़त्म हो जाएगा। क़ालू, हमज़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, ता को हम जीम साकिन के साथ मिलाएंगे। अब यहाँ देखें, तिलावत के दौरान हरूफ़े क़लक़ला के 5 वर्ड में से साकिन हालत में जीम आ रहा है, तो यहाँ टकराव पैदा होगा, डबल साउंड आएगा। यहाँ हम क़लक़ला करेंगे और डबल साउंड आएगा। ये क़लक़ला कौन सा होगा? क़लक़ला सोरा। हमज़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, ता को हम जीम के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ताज, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। आ, लाम के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। लू, ताज आलू, फ़ा के नीचे ज़ेर, आगे याए साकिन के साथ, फ़ा को हम याए साकिन के साथ मिलाएंगे, ये याए मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। हा को सीने से अदा करेंगे, अलिफ खाली है, हा के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, अलिफ खाली से पहले हा के ऊपर ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है, ये याए मद्दा है, इन दोनों को हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। फ़ी हा, अब यहाँ देखें, मीम के ऊपर ज़बर है, आगे नून साकिन के बाद मुशद्दिद हरफ आ रहा है हरूफ़े यार मलून में से,
मुशद्दिद या आ रहा है, तशदीद वाला हरफ आ रहा है, तो यहाँ हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। और साकिन हरफ के बाद जब तशदीद वाला हरफ आता है तो साकिन हरफ को हम छोड़ देते हैं, पहले वाले हरफ को हम मुशद्दिद हरफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और साकिन हरफ को हम छोड़ देंगे। यहाँ गुन्ना कौन सा होगा? यहाँ इदगाम बिला गुन्ना होगा। मीम को या के साथ मिलाएंगे, मई, या के ऊपर पेश यू। अब पहले हमने इसके साथ इसको मिलाया, या को, तशदीद और मुशद्दिद हरफ को। अब या को इसकी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे यू, मई यू। और या के ऊपर पेश है, या को हम फा के साथ मिलाएंगे, युफ, फा साकिन के साथ मिलाएंगे और बगैर खंचे पढ़ेंगे युफ। सीन के नीचे ज़ेर बगैर खंचे पढ़ेंगे सी, सीन सीटी और सख्ती वाला हरूफ है। दाल के ऊपर पेश बगैर खंचे पढ़ेंगे मई युफ सीदू। फ़ा के नीचे ज़ेर, आगे याय साकिन है, फ़ा को हम याय साकिन के साथ मिलाएंगे, ये याय मद्दा है। हा को सीने से अदा करेंगे, हा के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है। इन दोनों को हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। फ़ी हा, वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वा। या के ऊपर ज़बर है, या को हम सीन साकिन के साथ मिलाएंगे, सीन सख्ती और सीटी वाला हरूफ होता है, और बगैर खींचे पढ़ेंगे यस। फ़ा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे फ़ी। इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। काफ को हम दाल के साथ मिलाएंगे, दाल मुशद्दिद है, दरमियान में ये लाम और हमज़तुल वसल ख़त्म हो जाएंगे। लाम के ऊपर भी कोई अराब नहीं है तो इन दोनों को हम अदा नहीं करेंगे। काफ को हम दाल के साथ मिलाएंगे, काफ दाल पेश कुद। अब हम इसकी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे, दाल ज़ेर दी, कुद्दी, वायसफी कुद्दी, और बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली के ऊपर बड़ी मद है, मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, इसको हम 5 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आगे ये जो छोटा सा जीम लिखा हुआ है ये वक्फ़े जायज़ की अलामत है, तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे तो हमज़ा साकिन हो जाएगा और हल्का सा झटका आएगा। कुद्दिमा, वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वा। नून के ऊपर ज़बर, आगे हा साकिन है, हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे और बगैर खींचे पढ़ेंगे नाह। नून के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे नू, व नाहनु। नून के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे सीन। सा में सीटी नहीं होती और ख्वाद में भी सीटी नहीं होती और सीन में सीटी होती है, सीन सख्ती और सीटी वाला हरूफ है। नून के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन को हम मुशद्दिद हरफ के साथ मिलाएंगे। मुशद्दिद हरफ हमेशा सख्ती और जमाव के साथ अदा किया जाता है और 2 बार अदा किया जाता है, और एक बार अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है और एक बार अपनी हरकत के मुताबिक अदा किया जाता है और थोड़ी देर रुक कर अदा किया जाता है। सीन को हम बा के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे सब भी। हा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे हु, व नहनु नुसब्बिहु। बा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे बी। हा को हम मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे हम। दाल के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे दी। काफ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे का, बिहम्दी का। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वा। नून के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे नू। काफ को हम मोटा पढ़ेंगे, काफ को हम दाल के साथ मिलाएंगे, दाल के ऊपर तशदीद है। दाल को हम सख्ती और जमाव के साथ पढ़ेंगे और बगैर खींचे पढ़ेंगे। काफ को हम दाल के साथ मिलाएंगे कद दी और बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे सू, व नुक़द्दिसु। लाम के ऊपर ज़बर, आगे काफ के ऊपर ज़बर है। अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो काफ का ज़बर पढ़ेंगे। अगर यहाँ देखिए अब तो वक्फ़े मुतलक की अलामत है तो यहाँ हम वक़फ़ करेंगे और काफ साकिन हो जाएगा। और हम कैसे पढ़ेंगे? लक। और काफ पर हम कलकला पैदा नहीं करेंगे, लाका नहीं पढ़ेंगे। वक़फ़ की हालत में लक पढ़ेंगे, वक़फ़ की सूरत में लक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली से पहले काफ के ऊपर ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। क़ा, लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ला, क़ाला। हमज़ा के नीचे ज़ेर, आगे नून मुशद्दिद आ रहा है रूफ़ यरमलून में से, तो यहाँ हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। नून के नीचे ज़ेर, आगे याय साकिन के ऊपर छोटी मद है, मद्दे मुनफसिल जायज़ है, इसको हम 3 अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। यहाँ हम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। इन्नी।
حمزہ کو ہم عین کے ساتھ ملائیں گے اور حمزہ پر ہم عین کی آواز نہیں نکالیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اور بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے لا، میم کے اوپر پیش بغیر کھینچے پڑھیں گے مو، لامو، میم کے اوپر زبر، آگے الف خالی ہے، الف خالی سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے، یہ الف مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے ما، لام کے اوپر زبر، آگے پھر الف خالی ہے، یہ بھی الف مدہ، اس کو بھی ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے لا، تا کو ہم عین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے تا، لام کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے لا، میم کے اوپر پیش، آگے واو ساکن ہے، یہ واو مدہ ہے، میم کو ہم واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ واو مدہ، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، نون کے اوپر زبر، وقف کی صورت میں نون کا زبر ختم ہو جائے گا، نون ساکن ہو جائے گا، یہ وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالاسکان، اور یہاں مد بنے گی، وقف کی صورت میں الف مدہ، واو مدہ یا یا مدہ ہو، وہاں مد بنتی ہے مد عارض لی سکون، اس کو ہم 2، 2.5، 3، 4، 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں۔ ما لا تعلمون، ایک بار میں آپ کو پھر رواز کروا دیتی ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي، نہیں پڑھیں گے، أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سبق کی مشق بار بار کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، خود بھی یاد کریں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، حرف بحرف اچھے سے سنا کریں، غور سے سنا کریں اور سمجھ کر یاد کیا کریں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 کے ساتھ میں پھر آپ سے مخاطب ہوں گی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔